یہ محنت، دیانت، استقامت اور خلق خدا کی خدمت کی کہانی ہے، جس کا آغاز میاں محمد شریف نے 1937 میں اپنے والد محترم میاں محمد رمضان کی دعاؤں کے سائے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ انجینئرنگ انڈسٹری کی بنیاد رکھ کر کیا، جو 70 کے دہائی کے اوائل تک پرائیویٹ سیکٹر میں ملک کی سب سے بڑی اسٹیل انڈسٹری تھی، جس کا ایک یونٹ مشرقی پاکستان میں بھی تھا۔ 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد اتفاق فیملی ایک طرف مشرقی پاکستان میں اپنے تمام اثاثوں سے محروم ہو گئی تو دوسری طرف وزیر اعظم بھٹو نے یہاں اتفاق انڈسٹریز کو کسی معاوضے کے بغیر سرکاری تحویل میں لے لیا۔ سالہ سال کی محنت سے بنائے گئے عظیم صنعتی ادارے پر سرکاری قبضہ ایک خاندان کا المیہ تو تھا ہی، مگر اس کے ساتھ ہزاروں خاندانوں کی بے روزگاری اور ملک میں صنعتی عمل کا پہیہ الٹا گھما دینے کی کارروائی بھی تھی۔ اس کے باوجود میاں محمد شریف اور ان کے بھائیوں کی اپنے وطن سے محبت غالب رہی اور وہ ایک نئے جذبے، عزم اور حوصلے کے ساتھ پاکستان ہی میں دوبارہ سرگرم عمل ہو گئے، اور اللہ کے کرم سے محنت پھر رنگ لائی اور انہوں نے 70 اور 80 کی دہائیوں میں ہی سٹیل، ٹیکسٹائل اور شوگر کے نئے کارخانے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ خلق خدا کے لیے رفاہی اور سماجی اداروں کی بھی بنیاد رکھی۔ اتفاق ہسپتال اور شریف میڈیکل سٹی اس کی تابندہ و پائندہ مثالیں ہیں۔ میرے والد صاحب یہ بات سمجھتے تھے کہ پاکستان میں بے شمار جو امراض ہیں وہ لا علاج ہیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اور پھر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اس کا علاج کرا سکیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ہسپتال ہو جو بہت عمدہ ہو، ہر قسم کی وہاں پر سہولت ہو، فیسلٹی ہو، اور اس کے بعد غریب لوگ وہاں پہ علاج کروائیں، اور پھر جن کے پاس گنجائش نہیں ہے ان کا علاج بھی فری کیا جائے۔ آج اتفاق ہاسپٹل کا شمار وطن عزیز کے بہترین ہسپتالوں میں ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ پیشہ ورانہ طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ 1986 میں جب یہ سٹارٹ ہوا تو اٹ واز 200 بیڈس، اور بیسک جتنے جنرل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ یہاں پہ قائم ہوئی تھیں۔ ابھی یہ ماشاءاللہ 435 بیڈس کا ہاسپٹل ہے۔ جنرل سرجری میں آج کل ہم ایک سنگل انسیجن لیپروسکوپک سرجری کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں بہت کم ہو رہی ہے۔ کارڈیولوجی، پلمونالوجی، کارڈک سرجری ہماری بہت اچھی ہے، اور پیڈس میں جو کارڈک سرجری ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں پورے پاکستان میں ٹاپ پر ہے۔ اس ہسپتال میں 6 بلاکس اور 12 وارڈز پر مشتمل 22 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، جہاں 1610 افراد پر مشتمل عملہ جدید سہولیات سے لیس میاں محمد شریف اور ان کے بھائیوں کے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اور اسی ویژن کے پیش نظر یہاں ضرورت مند لوگوں کو مفت اور معیاری علاج کی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں۔ یہاں بہت اچھا انتظام ہے، 10 روپے کی پرچی ہوتی ہے اور 2-3 دن کی دوائی دیتے ہیں، وہ بڑے تسلی سے دیکھتے ہیں۔ فری چیک اپ اور ادویات کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑنے پر مستحق مریضوں کے فری ایکس رے اور لیبارٹری ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ علاج کی سہولیات کی فراہمی کے علاوہ ہسپتال میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ٹریننگ کا خصوصی طور پر انتظام کیا گیا ہے۔ اتفاق اسکول آف نرسنگ اینڈ پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ میں نرسنگ کا 4 سالہ کورس کروایا جاتا ہے، جہاں کشادہ اور روشن کلاس رومز، آئی ٹی لیب اور ڈیمانسٹریشن روم سمیت تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ نرسنگ اسکول سے اب تک 465 نرسیں ٹریننگ حاصل کر چکی ہیں۔ یہ ٹرسٹ ہے، اس سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے، چاہے وہ اتفاق ہاسپٹل سے ہو، چاہے وہ شریف ٹرسٹ سے ہو، شریف میڈیکل سٹی سے ہو، ہسپتال سے ہو، سب کا سب جو پیسہ ہے وہ دوبارہ انہی اداروں کی بہتری کے لیے، ایکسپینشن کے لیے، مزید وسعت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے،
اور فیملی جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ ایک پیسہ بھی ٹرسٹ سے نہیں لے سکتے۔ میاں محمد شریف نے انسانی خدمت اور فلاح کے اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے 1995 میں شریف ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے، نہ صرف یہاں ہاسپٹل بلکہ یہاں پر نرسنگ اسکول ہے، انجینئرنگ کالج ہے، میڈیکل اور ڈینٹل کالج ہے۔ بعض لوگ جو پے نہیں کر سکتے ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں کی پڑھائی کا معیار بہت اچھا ہے، اور پھر یہاں پر بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں جو غریب گھرانوں کے بچے ہیں، تو ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہی اسٹینڈرڈ اویلیبل ہے جو کہ امیروں کے بچوں کے لیے ہے۔ شریف میڈیکل سٹی کے لیے رائون روڈ کے قریب پرفضا اور آلودگی سے پاک 88 ایکڑ جگہ خریدی گئی، جہاں پر 1998 میں 18,730 اسکوائر فیٹ پر اسٹیٹ آف دی آرٹ اور جدید ترین ہسپتال تعمیر کیا گیا، جہاں ہر وقت مستعد اور کوالیفائڈ سٹاف جدید مشینوں سے لیس ہر قسم کی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ میڈیکل سٹی لیٹ میاں شریف صاحب نے ویژولائز کیا، جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایڈوانس میڈیکل فیسلٹیز موجود تھی پاکستان میں، لیکن کانسیپٹ آف میڈیکل سٹی کوئی نہیں تھا۔ ہسپتال کا جو پیشنٹ نمبر ہے وہ 360 کے قریب ہے۔ اس کے جو آپریشن تھیٹرز ہیں وہ 13 آپریشن تھیٹرز ہیں جو مختلف شعبہ جات کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ جہاں تک یہاں کی اسپیشلٹیز کا تعلق ہے، اس میں ہمارے پاس نیفرولوجی ہے جو اکثر ہسپتالوں میں نہیں ہوتی، اور جو ڈائلیسس مشینیں ہیں وہ لیٹسٹ مشینیں ہیں، اور ان کے پروفیشنل لیول جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں۔ یہاں اسپیشلائزڈ سینٹرز جن میں نیورو سرجری، ویمن ویلفیئر سینٹرز، جدید لیبارٹریز اور سینٹر فار ڈائگنوسٹک انٹرنیشنل ریڈیولوجی اور ہارٹ سینٹر نے ان گنت مریضوں کو زندگی کی نوید دی ہے۔ ہارٹ سرجری ڈپارٹمنٹ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ڈپارٹمنٹ ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر ہے۔ یہاں پہ امراض سینہ، دل اور پھیپھڑوں کے جتنے بھی امراض ہیں اور بیماریاں ہیں ان کا نہ صرف تشخیص بلکہ علاج بھی کیا جاتا ہے۔ روٹین کے اوپن ہارٹ سرجری کے علاوہ یہاں پاکستان کی تاریخ کا ایک پیچیدہ اور ایک منفرد قسم کا آپریشن جو کہ دل کے ایک مرض ہے جس کو حوکم کہتے ہیں، اس کے لیے پہلی دفعہ پرفارم کیا گیا۔ پاکستان میں یہ آپریشن اس ادارے کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتا۔ شریف میڈیکل سٹی میں سیپریٹ اور جدید میڈیکل CCU اینڈ سرجیکل ICU، نیونیٹل ICU اور ڈے کیئر سینٹر وغیرہ انتہائی مستعدی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں جدید ترین مشینری سے مزین ڈائلسس سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں پر مستحق مریضوں کو مفت علاج کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ چنگی امر سدو کی رہائشی یہ شہناز ہے، جو 3.5 سال سے گردے کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کا باپ سبزی کی دکان پر کام کرتا ہے۔ کم آمدنی کی بدولت اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکے۔ 3.5 سال ہو گئے بیمار ہوئی، 2-2.5 سال ہو گئے شریف سیڑھی ہسپتال میاں صاحب علاج کروا لیا جناب۔ کدے 15,000 دی دوائی اولے ہو جاندی سی، کدے 16,000 دی دوائی ہو جاندی سی۔ وہ جناب بڑے بڑے پیسے لگتے رہے نے۔ میاں صاحب دی بڑی بڑی مہربانی، جہاں جناب اے غریب دی سنتے تے مدد کر رہا، کوئی دوائی دا پیسہ نہیں، ساری روٹی بھی اتنے مفتی فری لگی رہی ہے۔ مہینے 8-8 باری گردے واش ہو جاتے ہیں جناب، مفتی کوئی پیسہ نہیں، کوئی ٹکا نہیں، لانی نہیں دینی، اتوں گڈی چونگی تو لے جاندی، چونگی تے چھڈ جاندی ہے جناب۔ اج بھی دیکھا میرے نال والیاں جا رہی تھیں، لیکن میں بیمار، میں اپنی طرف دیکھتی ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس آتا ہے کہ میں بیمار ہو گئی ہوں، میرے ساتھ والی ٹھیک ٹھاک ہے۔ بیمار اور مستحق لوگوں کی خدمت کے لیے مشہور اداکار محمد علی مرحوم شریف میڈیکل سٹی میں اعزازی طور پر انتظامی امور میں معاونت دیتے رہے ہیں۔ 2 یا 1 مرتبہ جو بھی جتنا بھی ڈائلسس کا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پر 2 سے 6 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں اس پروسیس میں، لیکن اس وارڈ سے یہاں پر اس ہاسپٹل سے کبھی کسی پیشنٹ کو 1 تھیلا نہیں دینا پڑتا۔ شریف میڈیکل سٹی میں اب تک 27,867 ڈائلسس سیشن بالکل مفت مہیا کیے جا چکے ہیں۔ نہ صرف یہ،
बल्कि यहाँ बैन अल-अक़वामी मेयार का किडनी सेंटर भी कायम किया गया है। वो लोग जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, उनके गुर्दों की पैवंदकारी जदीद मशीनों के जरिए तजर्बाकार डॉक्टर सरअंजाम दे रहे हैं। तब्दीली गुर्दा के ऑपरेशन को कामयाब बनाने की तरफ तवज्जो देते हुए यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल का खसूसी ख्याल रखा जाता है। हमारे पास बड़ी अच्छी फैसिलिटी है हीमोडायलिसिस की, और अब तक हम 2000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और उनकी पोस्ट ऑफ केयर अच्छी केयर होने की वजह से बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, और ये रिज़ल्ट्स हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक या इंटरनेशनल रिज़ल्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्गन ट्रांसप्लांट का एक सेंटर बने जिसमें कि लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बाकी सारे ट्रांसप्लांट हों और डोनर्स कैडेवरिक हों, ताकि ये जो प्रेशर है लाइव रिलेटेड डोनर्स का, ये फैमिलीज़ पे कम हो जाए। अब तक शरीफ मेडिकल सिटी में 2000 से ज़ायद कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। जी 98 में मैंने नर्सिंग कंप्लीट की और उसके बाद जॉब के लिए सऊदीया चली गई। अभी 7 मंथ या 8 मंथ हुए थे तो उधर मेरा किडनी फेलियर हुआ, और उसके बाद डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया, जो कि मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और जिसके लिए मेरे फादर ने मियाँ फैमिली को अप्रोच किया। उसके बाद शरीफ मेडिकल सिटी में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट टोटली फ्री हुआ। 3 महीने के बाद मैंने एज अ स्टाफ नर्स शरीफ सिटी में ही जॉब ज्वाइन की। 10 साल हो गए मुझे पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिसिन जो एक बिल्कुल फ्री मिल रही है। शरीफ मेडिकल सिटी पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर में एक बड़ा फलाही इदारा है। इस इदारे को शुरू से, इब्तदाई से शरीफ फैमिली ही सपोर्ट कर रही है। हर स्टेज पे, स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड एक्विजिशंस में या बिल्डिंग में या इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट में, फैकल्टी की हायरिंग में, थ्रू आउट शरीफ फैमिली खुद ही इन्वॉल्व रही है। शरीफ मेडिकल सिटी और इत्तेफाक हॉस्पिटल पिछले कई दहाइयों से शरीफ फैमिली का अवाम दोस्ती और हुब्बुल वतनी का मुँह बोलता सबूत है। हॉस्पिटल तो यहाँ कामयाबी से चल रहा है, लेकिन जो मियाँ मोहम्मद शरीफ मरहूम थे उनकी एक ख्वाहिश थी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बने, और जिस जज्बे के साथ ये हॉस्पिटल को हम चला रहे हैं, जिस जज्बे के साथ ये हॉस्पिटल बनाया गया है, वही जज्बा जो है वो इंस्टिल करें अपने स्टूडेंट्स के अंदर, और वो यहाँ से इस जज्बे के साथ परवान चढ़ें और इस जज्बे के साथ तालीम हासिल करें। ये जो हॉस्पिटल है हमारे, जो मेडिकल कॉलेज है शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ये PMDC के साथ जो है वो एफिलिएटेड है, और अब इसकी नई स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बन रही है। 2007 में शुरू होने वाले इस कॉलेज में MBBS का पहला बैच पास होने वाला है और BDS का एक बैच पास हो चुका है। शरीफ मेडिकल कॉलेज में तलबा और तालिबात के लिए हर तरह की सहूलत मुहैया की गई है, जिनमें क्वालिफाइड उस्तादजा, मल्टीमीडिया क्लासेस, म्यूजियम, डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स और प्रैक्टिकल काम के लिए अस्पताल में विजिट्स का भी इंतजाम किया गया है। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन की जो सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि यहाँ पे एडमिशन्स जो हैं वो मेरिट बेस्ड होते हैं, विदाउट एनी फेवरिज्म, और किसी भी किस्म की डिस्टिंग्विशनेस यहाँ पे नहीं की जाती। और दूसरी बात ये है कि यहाँ का माहौल काफ़ी सिक्योर है, और इस कॉलेज का डिसिप्लिन का मैंने सुना था कि बहुत अच्छा है, और एक कंफर्टेबल डिसेंट एनवायरनमेंट है, जो कि मैं कहती हूँ कि एक फीमेल स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। शरीफ मेडिकल कॉलेज में तालिब इल्मों के लिए हॉस्टल की सहूलत भी मुहैया की गई है। मैं हॉस्टल में करीबन 4 साल से यहाँ पर रह रही हूँ, और बहुत अच्छा माहौल है सारा। सिक्योरिटी आपको पता ही है, जब लड़कियाँ हॉस्टल में रहती हैं तो माँ बाप को थोड़ा रहती है, तो सिक्योरिटी की सबसे अच्छी इधर बहुत ख्याल रखा जाता है। पढ़ने का बहुत कंफर्टेबल पीसफुल एनवायरनमेंट है, कभी किसी किस्म की हमें इस तरह परेशानी नहीं। तालिब इल्मों की सफरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खुसूसी इंतजाम किया गया है। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए 6,37,120 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस डिजाइन किया गया है, जिसकी तामीर का काम शुरू हो चुका है। इस कैंपस की लागत का तखमीना 4 अरब रुपए लगाया गया है। चूँकि ये ट्रस्ट इदारा है, यहाँ पर नफ़े का कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरीके से तालीमी मैदान में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो फ़नी तालीम के इदारे हों जो हमने शरीफ कॉम्प्लेक्स में बनाए हैं, वहाँ पर भी यही मरकज़ी नुक्ता है कि ऐसे बच्चे और बच्चियाँ जो ज़हीन और पढ़ने की बहुत उनको शौक़ है पढ़ाई लिखाई का, मगर उनके पास वसाइल नहीं हैं,
ان کو وहाँ पर मुफ्त तालीम दी जाती है और जो कुछ अपने वसाइल मुहैया कर सकते हैं उनको वहाँ पर बाकी वसाइल शरीफ ट्रस्ट अदा करता है और जो अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल बनाया है कि वो अपने वसाइल अपना मुहैया कर सकें उनसे पूरी फ़ीस चार्ज की जाती है और फिर वो गरीब तलबा और तालिबात के लिए वो फ़ीस जो है उस तरफ डायरेक्ट कर दी जाती है। मियाँ साहब के इस ही विजन के तहत 1997 में शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी गई। 34 एकड़ पर मुहित इस कॉम्प्लेक्स में जदीद तरीका तदरीस को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन 1700 बच्चे पढ़ते हैं जो मॉन्टेसरी से लेकर इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारी करिकुलम दूसरे स्कूलों के मुकाबले में बिल्कुल एडवांस्ड और बिल्कुल लेटेस्ट जो मेथोडोलॉजीज़ हैं उसके मुताबिक डिवाइस किया गया है। आज हमारे नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट का हर बच्चा कंप्यूटर लैब यूज़ करता है और हम बच्चों को इस तरह सिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे खुद करें और फिर सीखें। 5 A स्टार्स मेरे आए हैं टीचर्स की और मेरी जो एफर्ट है यहाँ पे, और एनवायरनमेंट की जहाँ तक बात है तो इसलिए और आपकी ग्रूमिंग के लिए ये बेस्ट एनवायरनमेंट आपको शरीफ में मिल रहा है। तो एक जो आपका अंदर जो आपकी है टैलेंट उसको फुली आप टैप किया शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स ने। एक कॉन्फिडेंस लाया कि अगर मैं कहीं भी किसी भी फील्ड में आगे जाऊँ तो मुझे मतलब कोई परेशानी नहीं होगी किसी किस्म की। शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम्स और मल्टी मीडिया की सहूलत के साथ साथ तलबा और तालिबात को जदीद लाइब्रेरी, साइंस लैब्स, कोर्ट्स, प्लेग्राउंड्स, बोर्डिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं। बच्चों की बेहतर नशोनुमा को मद्देनजर रखते हुए गैर निसाबी सरगर्मियों का भी खसूसी एहतमाम किया जाता है। ये हारिस है जो 6ठी जमात का तालिब इल्म है। इसके वालिद पुलिस में थे जो कि एक मुकाबले में शहादत पा चुके हैं। मेरे फादर एक पुलिस ऑफिसर थे और वो चाहते थे कि मैं बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनूं और मैं आर्मी ऑफिसर बनकर अपनी मां का सहारा बनना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तफरीक की जाती है। गवर्नमेंट स्कूल्स का करिकुलम जो है वो बिल्कुल और है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो टॉप प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका करिकुलम बिल्कुल भी जो है वो और है। तो यहाँ हमने उसको इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया है कि जो हमारा करिकुलम है फॉर द अफोर्डिंग एंड द नॉन अफोर्डिंग वो एट पार विद द टॉप प्राइवेट स्कूल्स है। शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में इस बात पर खसूसी तवज्जो दी जाती है कि तमाम अफोर्डिंग और नॉन अफोर्डिंग बच्चे यकसा माहौल में बिला तफरीक तालीम हासिल करें। जिसकी फ़ीस यहाँ पे माफ़ भी है तो उन बच्चों के बारे में किसी दूसरे बच्चे को पता नहीं होता ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब के विजन को आगे बढ़ाते हुए 2011 में शरीफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कायम किया गया और इसी साल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च करने की इजाजत दे दी। शरीफ एजुकेशन ट्रस्ट ने 50% की सब्सिडाइज फी पे लोगों को तालीम देना शुरू की हुई है। हमने होनहार बच्चों को ओवर एंड अबव ये सब्सिडाइज फीस के अप टू 30% मजीद फी वेवर दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। SCET में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेस में 4 साला बैचलर का इनाकाद किया गया है। UET बहुत कम प्राइवेट इदारों को अपनी एफिलिएशन देती है और स्केट का पहला साल था और पहले साल में ही इसे UET से एफिलिएशन मिल गई। केमिकल इंजीनियरिंग एक एक्सपेंसिव इंजीनियरिंग है लेकिन हमारे इदारे के ड्यूज़ दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में बहुत कम हैं। मैं यहाँ पे बहुत आके बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ना सिर्फ यहाँ की फैकल्टी अच्छी है बल्कि एनवायरनमेंट ऐसा है क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज से यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और उन एरियाज से यहाँ पर आने का मतलब ये है कि एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिससे हम अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्टडीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास काफ़ी डिसिप्लिन्स मौजूद हैं और 2 साल तक इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि हम इसके लिए यूनिवर्सिटी का चार्टर लें।
खसूसी बच्चों को जिंदगी के धारे में शामिल करने के लिए 2009 में ओएसिस के नाम से इदारा कायम किया गया, जहां ऑटिज्म से मुतासर बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ओएसिस में जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, हम पेरेंट्स को एक बहुत कंफर्ट जोन देना चाहते हैं। जब बच्चे आते हैं तो हम उनको गेट से ही लेते हैं, स्कूल में कोई आया कल्चर नहीं है। हम बाकी स्कूल्स की तरह बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए एक टीम वर्क के तहत काम किया जाता है। हम बच्चों की बिहेवियर मैनेजमेंट पे हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं लीना, उनके साथ पेरेंट्स के साथ और टीचर एक ट्रायंगल बनकर काम करता है। उसके बाद यहाँ पे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, बच्चों के कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करके काम किया जाता है। जिस तरह हर बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है असेसमेंट के हिसाब से, उस तरह से उन बच्चों के साथ फिजियोथेरेपी में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में काम किया जाता है। उसके बाद हम सेल्फ हेल्प स्किल्स बच्चों को सिखाते हैं, ग्रूमिंग से लेके खाना कैसे खाना है, बैठना कैसे है, और यहाँ तक कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। उसके बाद हम यहाँ पे उनको आर्ट सिखाते हैं, हम फोटोग्राफी सिखाते हैं, हम उनको ट्रिप्स पे लेके जाते हैं बाहर, और राइडिंग होती है वंस अ वीक। ओएसिस पाकिस्तान का पहला इदारा है जो ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों के लिए कायम किया गया है। शरीफ मेडिकल सिटी में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं, जिसमें मस्जिद, कैफेटेरिया, बुक शॉप, वसी पार्किंग, बैंक, कुशादा और सरसब्ज लॉन वगैरह शामिल हैं। मियां मोहम्मद शरीफ इस शरीफ एजुकेशन ट्रस्ट और शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल के बानी जो थे, वो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल इंसान थे और पूरी ज़िंदगी उनकी खिदमत खल्क से इबारत है। अपनी आने वाली नस्लों को उन्होंने जो है वो इस चीज़ की तरगीब दी कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, इंसान को दूसरों के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए। उनका भी ये विजन था, ख्वाब था कि बाहर के गैर मुल्की अच्छे इदारों के साथ एफिलिएशन हो और उनके साथ मिल के उनकी भी मदद हासिल करके आगे बढ़ा जाए और इसको एक पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इदारा, उम्दा इदारा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया जाए जिस पे ये कौम जो है ये फ़ख्र करे। मेरे वालिद मोहतरम की ये बड़ी कंसिडर्ड पॉलिसी थी कि हम हुकूमत से कोई मदद तलब नहीं करेंगे। हालांकि मैं ख़ुद वज़ीर आला भी था, पंजाब का वज़ीर आज़म भी था, तो चाहता तो ज़मीन भी दे सकता था, चाहता तो और भी वसाइल मुहैया कर सकता था। तो ये सब माशाअल्लाह अपने जेब से, अपने रिसोर्सेज से ये इदारे बनाए हैं। कहते हैं कि भलाई का रास्ता आसान नहीं होता। इंसानी खिदमत के इस सफर में भी कई रुकावटें और कई दुश्वारियां हाइल हुई। कभी हिजरत की, कभी जिला वतनी काटी, मगर दुखी इंसानियत की खिदमत का सिलसिला इसी जज्बे से चलता रहा। और आज मोहम्मद नवाज शरीफ अपने बाकी खानदान के साथ मिलकर अपने वालिद के लगाए हुए इस पौधे की आबियारी में मसरूफ़े अमल है, जो लातादाद लोगों को जिंदगी की नवीद दे रहा है।